Hello, my dear student. This is point 2 of lesson French Revolution. The topic name is the outbreak of revolution. The outbreak of revolution means to say क्रांति की शुरुआत means जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था. Firstly, we have to listen some summary of this. That on 5th May 1789, Louis XVI called for an assembly of the States General to pass the proposal for new taxes. First, second and third state sent their representative. The first and second state sent 300 representatives each, who were seated in rows, facing each other on two sides. Third state was represented by its more prosperous and educated members, but they faced discrimination and had to stand at the back. Dear student, then peasants, artisans and women were denied entry to the assembly, but they sent their demands and grievances through representatives. The members of the third state demanded that voting should be conducted by taking assembly as a whole, but the king rejected this proposal and members of the third state walked out of assembly in protest. Means to say कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी, ये जस्ट एक समरी थी. अब हम इसको अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है पढ़ेंगे. लुइस 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. आप पहले से previous section में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि क्यों, why, what is reason behind the tax increasement. मतलब क्या कारण थे जिससे लुइस 16 जो है वो टैक्सेस को बढ़ाता है. How do you think he could have gone about doing this? In the France of old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the States General, which would then pass his proposal for new taxes. The States General was a political body to which the three states sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. कहने का मतलब प्रीवियस सेक्शन में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुइस 16 ने कर को बढ़ाया था. क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा. तो जो फ्रांस में ओल्ड रिजम था, मीन्स कहने का प्राचीन जो मोनार्च चलता था, फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था. इसके लिए उसने स्टेट जनरल मतलब प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई, मीटिंग करके करों के अपने जो प्रपोजल थे उसको मंजूरी लेनी पड़ती थी. मीन्स कहने का कि पहले के समय में जो फ्रांसीसी सम्राट थे वो कोई भी कर अपने से अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते थे, और इसलिए उनको स्टेट जनरल मतलब प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी जिसमें वो प्रपोजल रखते थे और उनको जो है फिर मंजूरी मिलती थी. Rather, he had to call a meeting of States General, which would then pass his proposal for new taxes. फिर उसके बाद वो उसके द्वारा मीटिंग के द्वारा जो है पास होता था उनका प्रपोजल न्यू टैक्सेस का. The States General was a political body to which the three states sent their representative. कहने का मतलब स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे. However, the monarch alone could decided when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. कहने का मतलब कि सिर्फ सम्राट ही ये निर्णय कर सकता था किस मीटिंग मतलब इस संस्था की जो मीटिंग है वो कब बुलाई जाएगी, और इसकी जो लास्ट मीटिंग थी, लास्ट टाइम ये कब हुआ था, ये मीटिंग कब बुलाई गई थी, तो वो 1614 में. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent
300 representatives each who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of third state had to stand at the back. Means to say, फ्रांसीसी सम्राट लुइस 16 ने 5 मई 1789 को जो न्यू टैक्सेस के प्रपोजल थे उसको मनवाने के लिए, मतलब उसको पास करवाने के लिए उसने जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई। जो रिप्रेजेंटेटिव की बैठक, मतलब कहने का मतलब रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साई वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी मीटिंग के लिए वर्साई के आलीशान भवन को सजाया गया। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 representative each who were seated in rows facing each other on two side, मतलब जो फर्स्ट पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे, इनकी बैठक में से 300 प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए थे जो आमने सामने की रो में, कतारों में बैठाए गए थे। While the 600 members of the थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट बैक, जबकि जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वो जो है पीछे खड़े हुए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके मतलब जो तीसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन से लोग थे? वो लोग थे जो कि तीसरे स्टेट में सबसे ज़्यादा समृद्धशाली या एजुकेटेड मेंबर थे, उन्हीं को भेजा गया था। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनीड एंट्री टू द असेंबली, जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे एंड वुमेन थी, उनको जो है आने की अनुमति नहीं थी असेंबली में। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। किसानों, औरतों तथा जो कारीगर थे उनको जो है सभा में आने के लिए अनुमति नहीं थी, मतलब वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई थी, जिसको उन लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के साथ भेजा था। जो उनके प्रतिनिधि जो थे वो लेके आए थे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो लेके आए थे मीटिंग में। Voting in the State General in the past had been conducted according to principle that each state had one vote. This time too Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by the philosopher like Rousseau in the book The Social Contract. कहने का मतलब स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, मतलब कि जो थर्ड स्टेट थे एक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। इस बार भी लुइस 16 ने इसी प्रैक्टिस का पालन करने के लिए मतलब पालन करना चाहा, परंतु जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिमांड रखी कि अब की बार जो है पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाएगा, मतलब हर स्टेट के जो मेंबर हैं वो भी मतदान करेंगे और हर मेंबर के पास अपने एक वोट देने का अधिकार होगा। यह एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जिसके विषय में जो है रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, मतलब जिसका विचार जो है इस तरीके के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के विचार को किसने बताया था? रूसो ने अपने थर्ड स्टेट के अपने बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, मतलब जब एम्परर ने इस प्रस्ताव को जो है रिजेक्ट कर दिया तो जो तीसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो है प्रोटेस्ट करते हुए सभा से बाहर चले जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट विप्ड देमसेल्फ एज स्पोकन मैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, कहने का मतलब तीसरे स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? स्पोक्समैन, मतलब प्रवक्ता एक तरीके से मानते थे। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They
declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarchs। कहने का मतलब कि 20 जून को ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। क्या घोषित किया? अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मीन्स कहने का कि 20 जून को जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, वो जो है इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, वर्साई के ग्राउंड इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने ग्रुप को नेशनल असेंबली घोषित किया और ये शपथ लिया कि जब तक कि सम्राट के पावर्स का लिमिट नहीं हो जाता तब तक उनकी असेंबली जो है एक ऐसा संविधान बनेगा जिसमें सम्राट के पावरों का भी लिमिटेशन होगा और जब तक ये इस तरीके का संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली उनकी भंग नहीं होगी। दे वर लेड बाई Mirabeau and Abbe Sieyès। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges. He brought out a general and delivered powerful speeches to crowds assembly at Versailles। कहने का मतलब कि उनका जो लीडरिंग था, मतलब लीडरशिप कौन कर रहा था? मीराबियो और आबे सिये ने किया। मीराबियो का जन्म जो है वो एक कुलीन परिवार में हुआ था, नोबल फैमिली में हुआ था, लेकिन वह सामंती जो विशेषाधिकार थे उसको समाज से ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। कहने का मतलब वो खुद जो है नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो जो है इस तरीके का जो फेड्यूल प्रिविलेज मिलता था, मतलब विशेषाधिकार, सामंती विशेषाधिकार मिलते थे, उसको वो ख़त्म करना चाहता था। ये विशेषाधिकार क्या थे कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग जो है कोई कर पे नहीं करेंगे, बल्कि वो जो है अलग अलग तरीके से, जैसे क्लर्जी हैं तो वो थर्ड स्टेट के लोगों से चर्च के रूप में एक कर और क्या इनडायरेक्ट कर ऐसे कई तरीके से वसूलेंगे, वो नहीं देंगे। He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowds assembled at the Versailles। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समझ जोरदार भाषण भी दिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया? कैसा लगा सेशन आप हमें बताएंगे। तो ये हमारा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये दूसरा पॉइंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेसन का। थैंक यू।